कि जो खेलेगा वही खिलेगा। हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी झुक मत, कभी रुक मत, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, तन से भी मन से भी भारत के लिए, वतन के लिए, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, तन से भी मन से भी भारत के लिए, वतन के लिए, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, हवा न बन तूफान बन जा, आग का एक दरिया बन जा, चल खेल, चल खेल, पूरब से आ, पश्चिम से आ, पूरब से आ, पश्चिम से आ, दक्षिण से खेल, उत्तर से खेल, भारत के लिए सब मिलके खेल। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। खेलेगा भारत, खिलेगा भारत, भारत, मैं भारत, दुआ भारत, मैं भारत, दुआ भारत, भारत के लिए सब मिलके खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत। दरअसल खेलो इंडिया विंटर गेम्स दो भागों में होंगे। एक यहां पर लेह से जो आज शुरू होंगे वो आइस के मुकाबले हैं और उसके बाद स्नो के मुकाबले गुलमर्ग में होते हैं। और जब से ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स सरकार की एक मुहिम आई है, जो ये इलाके हैं जो अक्सर बर्फ़ के दौरान या ठंड के दौरान जहाँ पर ये सारे खेल होते हैं, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये आज के मुख्य अतिथि Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, who has now entered the premises of this NDA Sports Complex, which stands for Nawang Dorje Topdan, and he would be giving us the opening speech for the Khelo India Winter Games, the first leg of it, which starts today from the 23rd of January, and it'll extend till the 27th of January, and then the second leg will begin in February 22nd to 27 in Gulmarg, Jammu and Kashmir, where the snow sporting events will take place. Over here at Leh Ladakh, it's a venue for the ice sporting events to take place, and you can see that the Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh being introduced to the memorabilia and all the articles of importance here. Very important, of course, would be the exhibition match, which will take place later as well. Plenty of security cover. This is a militarized zone. दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, खेलों की दुनिया में उन्होंने एक क्रांति सी ला दी है। हर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना, उनसे मिलना, उनकी तकलीफ़ों को सुनना और नतीजे की परवाह किए बिना बस अभ्यास करते रहना और पूरा 100% कमिटमेंट देना, यही उनका संदेश रहता है। कोई भी खेल हो, चाहे विंटर गेम्स के खिलाड़ी क्यों ना हो, उनके हमेशा शब्द खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि इन विंटर गेम से पहले मोदी जी का खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है। Heartiest greetings to all the participating sportspersons and everyone associated with the organization of the 5th Khelo India Winter Games, KIWG, at the Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. The inauguration of these games marks an exciting beginning of the national sporting calendar. A perfect blend of thrilling winter sports and the spirit of adventure, these games have established Ladakh and Jammu and Kashmir as premier destinations, with Leh emerging as the ice sports capital and Gulmarg
excelling as a leading hub of skiing. Our government attaches top priority to sports development in Ladakh and Jammu and Kashmir. Through 100 Khelo India centers in Jammu and Kashmir and 3 in Ladakh, including a state center of excellence in Leh for athletics, archery and boxing, our efforts are shaping the region into a hub of sporting excellence. Such venues of international stature have not only elevated the culture of sports in our country, but also boosted tourism, showcasing the nation's beauty and diversity. The energy and enthusiasm of youth seen in such tournaments drive healthy competition across various fields, especially in sports. These games amplify this spirit, cultivating champions. With sustained focus on providing modern sports infrastructure, our effort has been to provide wings to the aspirations and abilities of our athletes to excel at national and international sporting events. I'm sure that the Khelo India Winter Games 2025 will play a crucial role in taking our sporting excellence to the next level. My best wishes to all the participating athletes at the Khelo India Winter Games 2025. Quote unquote, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. नमस्कार सभी को। आज सुबह मैं दिल्ली से लद्दाख के लिए निकला था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण मेरी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। मैं बड़ा एक्साइटेड था आप सभी के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जुड़ नहीं पाया। आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के कार्यक्रम की बात मैं आप सभी के साथ करूं, इससे पहले मैं फिर एक बार इस मंच से पिछले कुछ समय में भारतीय खेल इतिहास के अपने इस स्वर्णिम युग की बात भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं, खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, और भारत के खिलाड़ियों ने हर कदम पर इसे सच साबित किया है। पेरिस ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स, वेस्ट इंडीज में हुए T20 वर्ल्ड कप, बुदापेस्ट में हुआ चेस ओलंपियाड हो या सिंगापुर में गुकेश डी का चेस में अब तक का सबसे युवा विश्व विजेता बनना, बीते पिछले एक साल में शायद ही कोई ऐसा बड़ा देश छूटा होगा जहां जाकर हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगा नहीं गाड़ा होगा। साथियों, खेलो इंडिया सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये भारत में हुई खेल क्रांति है। हमने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, हमने हरित क्रांति के बारे में भी जाना होगा, हमने गुजरात में हुई श्वेत क्रांति को भी समझा होगा, मगर हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें आजाद भारत में पहली बार हुई खेल क्रांति से जुड़ने का मौका मिला है। मुझे विश्वास है कि आज खेलो इंडिया गेम्स के जरिए होती इस खेल क्रांति का असर भारत में होने वाले 2036 ओलंपिक गेम्स में भी दिखेगा। मुझे विश्वास है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी 2036 में जरूर करेंगे और खेलो इंडिया गेम्स में तब कर सोना बनने वाले हमारे खिलाड़ी उस ओलंपिक्स में गोल्डन स्टार कहलाएंगे। जब मैं बात 2036 ओलंपिक्स की कर रहा हूं, तब मैं भी समझता हूं कि हमें तब की जीत के लिए मेहनत अभी से शुरू करनी पड़ेगी और इसके लिए हमारे खिलाड़ी देश भर में खेलो इंडिया गेम्स के साथ तैयारियों में अभी से जुटे हैं। आज मैं अगर यहीं इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करूं तो इसमें कुल 428 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जहां 11 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज से आइस स्केटिंग और 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से आइस हॉकी की टीमों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। इन खेलों में हमारी भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान भी आइस हॉकी प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। हर बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या देखना अपने आप में गौरव का विषय है। हमने भारत के उभरते खिलाड़ियों के रूप में उस खेल क्रांति की झलक देखी है जो खेलो इंडिया और टॉप्स के मंच से तैयार होकर पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में छा गए। इस आयोजन ने न केवल देश में कोने कोने में आइस स्पोर्ट्स को लेकर एक क्रेज पैदा कर दिया है, बल्कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बदौलत आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्पोर्ट्स टूरिज्म के मामले में ग्लोबल हब बनकर सामने आया है। अगर मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं, तो उसमें छिपी विविधता और उससे होने वाले फायदों को भी देखता हूं। अभी हम लेह में हैं, तो यहाँ के मौसम के हिसाब से विंटर गेम्स देख रहे हैं। पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो एडवेंचर गेम्स को देख पाएंगे। दक्षिण भारत में बीच गेम्स की अपार संभावनाओं को तलाशेंगे। पश्चिम तट पर अपने अन्य सभी परिचित खेलों के आयोजन को होता हुआ देखते हैं। ये बताता है कि हम
खेलों के मामले में 4D नेशन है। जाहिर सी बात है, मुकाबला तो जोरदार होना ही है, मगर एक बात मेडल की चाह में भूलनी नहीं चाहिए। ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी से सीखी थी कि हम यहाँ से निकलते हुए विनर्स या लूजर्स नहीं होंगे, हम यहाँ विनर्स और लर्नर्स होंगे। इस खेल आयोजन को लेकर हमारा एक सपना था, इसकी नींव में उसी सपने को हमने स्थान दिया था। वो सपना था खेलों के हर क्षेत्र में भारत की तरफ से विश्व को दमदार चुनौती पेश करना और विंटर ओलंपिक के पोडियम पर खड़े होकर जन गण मन का गान करना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स वो पाठशाला है जहां तप कर, जहां खप कर आने वाले सालों में हम विंटर ओलंपिक्स के सितारों को तैयार कर रहे हैं। आज के ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स के शुभारंभ महोत्सव में मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद और मैं सभी एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स एवं ऑर्गेनाइजर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ आई डिक्लेयर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ओपन। जय हिंद। This is the band which will play the musical instruments. The march past teams are getting ready, which includes the services teams, the Union Territory and the states of India. Lieutenant Governor of Union Territory Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, into the special box created for security, and more importantly, gives an overview of the exhibition match and of course the speed skating and the ice hockey events which will take place subsequently. ITBP शुरुआत करते हुए मार्च पास की, including the services boards, and Mahavir, you're mentioning Rajasthan as well, Chandigarh, Jammu and Kashmir, the Union Territory of Jammu and Kashmir being the venue for the second leg of the Khelo India Winter Games. And this is a special box where the Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, is sitting. लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल पाइप बैंड आपके सामने हाजिर है। सेंटर कमांडेंट है कर्नल कमल पांडे, पाइप बैंड मेजर है नायब सूबेदार जहूर अहमद। सेना में बैंड को 1689 में सभी इन्फेंट्री यूनिट्स में शामिल किया गया। इसी प्रकार लद्दाख स्काउट्स का पाइप बैंड भी साल 1963 में लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में स्थापना इसकी हुई थी। Lieutenant Governor of Uttar Pradesh of Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, just waving and acknowledging the pipe band in the middle of the ice hockey rink. Spectators also enjoying this show. It's about to start. Pipe band by the Ladakh Scouts. Well, we're in the middle of the ice hockey rink where the pipe band display by the Ladakh Scouts is taking place. And let's not forget that the other venue apart from the NDA Sports Complex Mahavir is the LSRC Centre, the Ladakh Scouts Regimental Centre, where the pipe band gets extensive practice on their own ice hockey rink. And then we can see this spectacular display in the opening ceremony of the Khelo India Winter Games here at Leh Ladakh. और जो पाइप्स हैं जिन्हें हम बैक पाइपर भी कहते हैं, ये सारे दे आर द पाइप्स विद द बैग, सो दे ब्लो द बैक पाइपर्स। ये पहाड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ, तो जब भी ये बैक पाइपर बजते हैं, जब भी ये
पाइप्स बजते हैं तब भी एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो पाइप्स हैं उसका एक अपना ही लोक कल्चर में उसका समावेश है, उसकी एक अलग गाथा है, उसका एक अलग वैल्यू है। यहाँ तक शादी ब्याह में भी पहले, अब तो सब जगह डीजे चलने लगे हैं, लेकिन पहले जो है इन्हीं बैंड बाजाओं के साथ जो है जो लोकल रहते हैं वहाँ पे शादियाँ भी होती थी। तो एक बहुत कस्टमरी ये इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक का, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन स्काउट्स बैंड के द्वारा एक लोकल फ्लेवर देता हुआ। और जो आप इनके पाइप्स पे उंगलियां देख रहे हैं थरकते हुए, वो इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम चाहे अपने कैमरामैन्स को पूछें या फिर यहाँ के लोगों को पूछें तो इस टेम्परेचर में आपकी उंगली फ्रीज हो जाती है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन धुन यहाँ पे ये बैंड पाइप्स का लोगों को सामने पेश करता हुआ। This is the center line of the ice hockey rink, where you can see the formation of 3 pipe band displays. This is Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, who's the Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, overseeing this pipe band display as they make their way around the ice hockey rink, all wearing their ice skates. And you can see the steel runners on which they're balancing. और आप देख सकते हैं, लेकिन हम सुन सकते हैं यहाँ पे जो लद्दाख स्काउट्स के जो लोग देखने आए हैं, ये उनकी धुन है, उनकी बटालियन की धुन है, तो वो गा रहे हैं साथ साथ में। एक ऐसा दृश्य जो आपके रोंगटे खड़े करता है, जो एक धागे में इस देश को पिरोते हैं अपनी बटालियन की तरह। जैसे नेशनल एंथम होता है उस तरीके से हर बटालियन का अपना एक धुन होती है, और ये धुन बटालियन की है, जो फिलहाल बहुत ही शानदार प्रदर्शन पेश किया है। Another view of the Indian Army, all wearing their clothing which protects them from this cold, and really rejoicing and clapping the performance of the pipe band display by the Ladakh Scouts in the traditional costume of Ladakh. And these are the spectators from the Indian Army. Traditional cultural program, all women from Leh Ladakh. Shah
इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए ज़ोरदार तालियों की मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगी। फ्रॉम Executive Director, Sports Authority of India, Ms. Manjushri Anand, to the Honorable Lieutenant Governor of Ladakh. इन शब्दों के साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए। सांगमाला जुले, सलाम, आदाब, नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्र ताशी ग्यालसन सीसी लद्दाख लेह, हमारे मित्र डॉक्टर मोहम्मद जफर अखोन सीसी लद्दाख कारगिल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, सभी काउंसलर्स, डॉक्टर पवन कोतवाल आईएएस, चीफ सेक्रेटरी कम एडवाइजर टू एचएलजी, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, एसएम बार, वीएसएम जीओसी 14 कोर, डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल आईपीएस, डायरेक्टर जनरल लद्दाख पुलिस, सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर खून सबरवाल आईपीएस, आईजी आईटीपीपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, श्री संतोष सुखदेवे आईएएस डीसी लेह, हमारे अन्य प्रदेशों से यहाँ पधारे हुए मेहमान, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आए हुए श्री मयंक श्रीवास्तव आईपीएस, श्री विनीत कुमार जी और सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स, कल्चरल ट्रुप्स, एसएआई ऑफिशियल्स, मीडिया पर्सन्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहनों और भाइयों, ये आज का जलसा बहुत ही ख़ास एक मौका है हमारे लद्दाख के लिए। और ये खेलो इंडिया, ये जो एक कार्यक्रम इतना विशाल चल रहा है पूरे देश में, जिसमें 12 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी के लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मित्रों, मैं तो आप सबकी तरफ से माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो ऐसे नए कार्यक्रम जो देश के हित में हैं, देश के युवा के हित में हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के हित में हैं और सभी वर्ग के हित में हैं, उस पर सोचते हैं, कार्यक्रम करते हैं और ये भी उसी में एक कार्यक्रम शामिल है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जितने डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, विश्व में, पूरे दुनिया में कहीं पर इतने कार्यक्रम नहीं हैं। अब उसमें बात क्या रह गई? बात उसमें यह है कि हम सबको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे जितने युवा हैं, जितने लोग हैं, वह सब उसका फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। ये मोदी जी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, लेकिन अब हम पर है कि हम उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इसमें रात दिन लगा रहता हूँ, मैं अपने को खपा रहा हूँ, 24 घंटे मैं काम करता हूँ। जब मैं सो रहा हूँ उसी वक्त शायद हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि लद्दाख का डेवलपमेंट, लद्दाख का डेवलपमेंट, लद्दाख का डेवलपमेंट, ये घूमता रहता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे जितने शहरी लोग आए हैं, हमारे जितने नागरिक आए हुए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है। और यहाँ पर बात कही गई 2036 के ओलंपिक की। मैं ये कह रहा हूँ
कि जब हमारा देश इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी हाल में जो अभी चल रहा है कुंभ में, जहाँ पर 50 करोड़ लोगों के आने का बंदोबस्त हो सकता है, तो 2036 में हम बहुत ही अच्छा ओलंपिक अपने देश में करेंगे और गर्व के साथ करेंगे। हम सभी लोग इसके लिए लालायित हैं और सबका सहयोग भी इसमें होगा। मित्रों, मेरा जो केंद्र बिंदु है, जो फोकस है, जो पॉइंट ऑफ अटेंशन है, वो है युवा। तो युवा के लिए, क्योंकि वही हम लोग तो अभी, मैं तो 86 साल का हो गया, 86 साल का, अभी हमारे सीसी साहब ये लोग भी काफ़ी उम्र में बढ़ गए हैं, आगे तो युवा आएगा, फिर वो हमारे लद्दाख को संभालेगा। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन में कोताही न हो और उसमें हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो अच्छी तरह से आगे बढ़ें, उसमें कमी ना आए। और दूसरा, उसका जो हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी भी होनी चाहिए, उसके लिए खेल। ये 2 प्रायोरिटी है, इस प्रायोरिटी पर काम करना है हमको। और अगर हम इस प्रायोरिटी पर नहीं काम करेंगे तो इसके माने हम आँख पर पट्टी बांध लिए हैं, हम दिमाग को बंद कर दिए हैं, हम अपने कार्यशैली को कमज़ोर कर दिए हैं। तो युवा, उनकी शिक्षा और उनका स्पोर्ट्स, ये होना, और इसके लिए जो भी ज़रूरत है मैं तो तैयार हूँ। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ड्राइव करता हूँ, तैयार हूँ। एक और, हमारी जो मान्यता है, जो मैंने इतने साल में देखा है, पढ़ा है, समझा है, मैं अभी ये 8 साल से गवर्नर हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारे प्रशासन में जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो सभी हैं, पूरी जनता है, पूरी आवाम है। लेकिन जो वहाँ पर एक मशीन होती है, कॉग होता है जो चलता है, वो हमारे सेक्रेटरीज हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे अफसर उस शैली से चलें जो कि हम डिस्कस कर लें, समझ लें कि ये इसी रास्ते पर जाना है आगे, और उससे बियॉन्ड, उससे कम कोई हो नहीं, उसी रास्ते पर चलें। इसलिए मैं हमेशा अपने अफसरों से कहता हूँ कि भाई देखो, आप लोग ट्रांसपेरेंसी से काम करो, आप लोग अकाउंटेबिलिटी से काम करो, आप लोग प्रोबिटी से काम करो, आप लोग इक्वल डिस्पेंसेशन से काम करो। और यही मैंने जितनी स्टडी की, मुझे लगता है कि हम इसी हिसाब चलेंगे तो हमारे सीसी और LHDC के लोग, हमारे अवाम, हमारे बाकी लोग ये भी आगे बढ़ सकेंगे। मित्रों, अब यहाँ पर 2 बातों की चर्चा हुई। एक तो यह हुआ कि आइस हॉकी तो खेल लिए, तो उसके बाद युवा क्या करे? उसको रोजी रोटी की भी ज़रूरत है। तो रोजी रोटी की ज़रूरत में मैंने अभी बात किया कोर कमांडर से, तो इन्होंने कहा कि ये आइस हॉकी वालों को रोज़गार दे रहे हैं, ये जो इनके यहाँ FAD है वहाँ पर इन्होंने रोज़गार की व्यवस्था की है। लेकिन मुझे संतोष नहीं होता है कि हम यहीं रुक जाएं। मेरा यह कहना है कि हम जितना कर सकें करें इनके लिए। तो मैं इसको प्लान करके, इसका पूरा समझ करके मैं इसको आगे भी बढ़ाऊंगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात करूंगा और डिफेंस मिनिस्टर से भी बात करूंगा, क्योंकि वो हमारे जानने वाले, हमारे एरिया के हैं, बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं। और उसी के साथ साथ बैंक्स, CSR, यहाँ भी स्कोप है उनको बढ़ावा देने का, तो ये भी होना चाहिए। अब 2 बातें मैं कहूँगा जिससे आपको खुशी होगी। मैं आज इस मंच से आइस हॉकी को यूटी लद्दाख का गेम डिक्लेयर करता हूँ।
यूटी लद्दाख का जो ऑफिशियल गेम होगा वो आइस हॉकी होगी। ये हमारा डिक्लेरेशन है। मेरे ख्याल से लोगों को समझ में नहीं आया। समझ गए क्या आप लोग? इधर हमारे दाहिने तरफ कुछ लोग बिल्कुल चुप हैं। समझे क्या? हाथ उठा दो भाई। आइस हॉकी हमारा यूटी लद्दाख का गेम होगा। अब कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको खुशी होगी। ये हमारे सीसी ले साहब ने भी इसका जिक्र किया। आज सुबह यहाँ आने के पहले मुझे मनसुख मांडविया साहब ने, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स के हैं, वो दिल्ली पहुँच के वापस रिंग किया। उन्होंने 5 बातें बताई। उन्होंने पहली बात तो ये बताया कि भाई मैं तो ले हो आया। तो मैंने कहा मंत्री जी कहाँ हैं आप? बोले मैं तो आधे घंटे तक लेह के ऊपर घूम रहा था भाई, तो मैं तो पहुँच आया, मैं तो ले हो आया। मैंने कहा मंत्री जी आपका स्वागत है। तो फिर बोले वो कि आपका हॉकी है, विंटर गेम्स हैं, मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर शुरुआत करूँ कश्मीर और यहाँ के लिए, दोनों के लिए। खैर मैं नहीं आ पाया। अब आपको खुशी होगी और सीसी ले साहब को भी खुशी होगी। उन्होंने कहा मिश्रा जी आपने हमसे कई बार कहा कि हमारी टीम बाहर जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कल शाम को मैंने जो लद्दाख की टीम है उसको चीन जाने के लिए फाइल पर दस्तखत कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब यह आपके ऊपर है कि आप अच्छा सिलेक्शन करें और सिलेक्शन को बेस्ट अपने प्लेयर भेजें, वहाँ जाके वो अच्छा प्रदर्शन करें चीन में, और प्रदर्शन करने के बाद उनकी वहाँ वाहवाही हो। फिर उन्होंने लास्ट बात कही, उन्होंने कहा कि जब ये लोग चीन से वापस आएंगे तब मैं उनको अपने घर में चाय के लिए बुलाऊंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं छत के भीतर से ऊपर उछल गया कि अरे भाई इतनी अच्छी बात। तो मित्रों, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। ईश्वर के कृपा से यूनियन गवर्नमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय होम मिनिस्टर साहब से लेकर के बाकी जितने मंत्रीगण हैं, ये समझते हैं कि ये जो बीडी मिश्रा है ये लद्दाख के लिए खप रहा है। तो ये ईमानदारी से बात करता है, लद्दाख के लिए बात करता है। तो हमारी बात सुनते हैं, सुन लेते हैं। तो फ़ायदा ये सब हमारे अवाम को होता है। और यह किस लिए है? क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे सीईसी हमारे साथ हैं, हमारे लोग हमारे साथ हैं। तो हम साथ मिलकर चल रहे हैं। मित्रों, मैं अपने जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं विक्रम मलिक जी, उनसे मैं ये अभी कहना चाहूँगा, और आप लोग विटनेस हैं ना, आप लोग साक्षी हैं कि ये जो हमारा आइस हॉकी वाले हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको रोजगार में कहाँ कहाँ पर स्कोप हो सकता है उसके लिए वो कोशिश करें। और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी कम एडवाइज़र साहब हैं उनसे वो सलाह लें और ये तैयार करें, प्रिपरेशन करें, इस बात का फाइल बनाएं और हमारे सामने लाएं। मैं अप्रूव करूँगा। हमारे लिए कोई फंड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिससे कहेंगे, जिससे ज़रूरत होगी, यूनियन कैबिनेट में हम बात भी करेंगे। मुद्दा क्या है? मेरा मिशन क्या है? लद्दाख आगे बढ़े। मेरा मुद्दा क्या है? हमारे अवाम को फ़ायदा हो। मेरा मुद्दा क्या है? हमारी बहनें लखपति हों। मेरा मुद्दा क्या है? हमारे युवा अच्छा पढ़ें और अच्छा खेलें। ये मेरा मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको पूरा आपका सपोर्ट मिल रहा है और मुझे पूरी आशा है कि लद्दाख आगे बढ़ेगा। और जब तक मैं यहाँ पर आपके सर्विस में हूँ, आपकी सेवा में हूँ,
मैं यही उद्देश्य रखूंगा। बहुत धन्यवाद। जय लद्दाख, जय हिंद। मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जी से एग्जीबिशन मैच शुरू करने की इजाज़त चाहूँगी सर। बहुत ही रोमांचक एक एग्जीबिशन मैच आपके सामने खेला जाएगा। Julian Namaskar Adab, 5th edition of Khelo India Winter Games 2025 का ये opening exhibition match यूपी लद्दाख की टीम व्हाइट और येलो के दरमियान कुछ ही लम्हों में यहाँ पे खेला जाएगा। Well, the exhibition match is about to commence. Both teams are from the Union Territory of Ladakh. Now the first period of 10 minutes, and immediately the match has now commenced. The team in yellow using the curved area of the ice hockey rink, and the puck is in play with the teams looking to gain possession. That was a drop pass, playing it towards the left wing. The team in white and looking for a direct shot into the net. Each team is composed of 6 players, and you can see right now that there is an offensive attack into the area of the yellow team. Action in the right wing as a buck is being played all across the ice hockey rink. You can see also the linesmen. There are 2 linesmen and 2 referees in this exhibition match, and you also have officials off the ice. Because of the speed of the puck traveling on ice, you require multiple officials. You have a goal judge, you have a timekeeper, a penalty box timekeeper, all looking to assist the 2 referees on ice. Action on the right wing for Team Yellow, and immediately losing possession to the defender. Looking to make room, and a direct shot at the net, blocked by the goalkeeper. You can see the mitt on the left hand and the gloves on the right. Plenty of padding there. The puck is quite heavy. It's almost 170 grams. It's a black in color, as you can see, with the stick blades looking for possession of that puck. Passing, trying to keep the puck on ice, changing wings as well from left to right, long passes, and the objective is to go beyond the blue line, advance. Well, that was a poor pass, easily intercepted, and regained possession there. The team in white, action in the left wing. Players are in their formation. Forwards, defense and goalie, 6 players per team, and that is one of the 2 referees on each side calling for a face-off in that red dot that you can see, and the puck has been dropped, fighting for possession there. The team in yellow defending and trying to take the puck away. The team in white trying to counter-attack, using the curved ends of the ice hockey rink. They haven't as yet installed the boards, the transparent shields all across the ice hockey rink for the safety of the spectators. Remember, it's an exhibition match only, and they will install it after the exhibition match. That's the goalie of Team White. The referee picking up the puck and making the teams ready for the face-off in that red center line. Dropping the puck, fighting for possession. This period is of 10 minutes duration. Typically there are 3 periods in each match with intermission in between. The exhibition match will not have a full period of 20 minutes per period. Team in yellow in possession of the puck. Passing, forehand pass.
and fighting the way along the boards. And once again using the boards. This is called forechecking, where they push the puck beyond the blue line and immediately possession being fought for, and the referee picking up the puck in the process. और इसी बीच पांच खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हुए हैं। रोटेटिंग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगातार चलता रहता है। जैसे खिलाड़ियों को मौका मिलता है, कोचेस को मौका मिलता है, वो रणनीति के तहत खिलाड़ियों को फ्रेश रखते हैं। फटाफट इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। और इस समय तो पक है वो वाइट के हाफ में है, खतरनाक हो सकता है। येलो एक दबाव बनाता हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इतना कंट्रोल करना पक को, क्योंकि आपको स्केट भी करना है, आप अपनी डायरेक्शन इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छा समन्वय होना चाहिए तब तमाम खिलाड़ियों के बीच में। जो मूव्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, क्योंकि जो डिफेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी हॉकी स्टिक के अलावा अपने कंधों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इस खेल को थोड़ा और रोमांचक बनाता है। थोड़ी इसमें हाथापाई भी देखने को मिल जाती है। विद इन द लिमिट्स ऑफ द गेम यू कैन ब्लॉक द पर्सन, और क्योंकि आप स्केट्स में हैं, आप बहुत जल्दी ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, तो आपके पास बहाना रहता है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। अच्छा मौका था गोल पोस्ट के आगे, लेकिन सही समय पर सही जगह पे मौजूद नहीं थे येलो टीम के ऑफेंसिव प्लेयर। इस समय गेंद पक जो है वो फिर से वाइट के पास है। बोर्ड सपोर्ट लिया है, बोर्ड चेक किया है, सीधा आगे बोर्ड के सहारे। तो आइस रिंग की तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। जो एंगल्स हैं उसका यूज़ किया जाता है पक को आगे पहुंचाने में। डेंजर एरिया हो सकता है वाइट के लिए। हालांकि इस समय दोनों टीमों का बॉडी लैंग्वेज ये है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट यूजिंग दिस एज अ वार्म अप एक्सरसाइज। एग्जीबिशन मैच है, सभी खिलाड़ी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हैं, हमेशा साथ खेलते हैं, इसीलिए एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिंग पे अभी उन्हें अगले 4 दिनों तक जद्दोजहद करनी है, और अगर आईटीबीपी और आर्मी की टीमों को टक्कर देनी है तो एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खेलना होगा। यूटी लद्दाख के खिलाड़ियों को मौका हो सकता है एक लॉन्ग और बिल्कुल सटीक गोल एंगल। बहुत कम मौका मिलता है गोलकीपर, क्योंकि अगर सामने खड़ा हो जाए तो फिर बहुत ही सटीक एंगल और ताकत होनी चाहिए, प्रिसीजन, पेस, तभी जाके पक गोल पे जाती है। और क्या बेहतरीन कैमरा एंगल यहाँ पर है। दिख जाता है कि गोलकीपर के लेफ्ट से जगह हल्की सी थी और वहीं पर काम कर गए टीम वाइट के ऑफेंसिव प्लेयर। Tremendous backswing in that slap shot, and that shows the entertainment value of ice hockey here in this exhibition match. And Team White has scored. They lead by 1-0 in the first period with less than 5 minutes remaining. Team White in the offensive. The offensive line intercepted by Team Yellow. And immediately Team White looking to regain possession as a cluster in that center line area. Picked up by Team Yellow again. Offensive rush and attempt into the net. The mesh net is 4 by 6 feet. Not much space for the offensive shot. And this time cleared into the right wing area. Team White passing to the center, looking for room towards the wings. And this time Team Yellow looking to regain possession in the defensive area, looking to intercept, regain possession, making a run for it. That's a rush, looking for a player to pass, and immediately intercepted by Team White, making a move in that right wing and across, but missed by the center and the left wing as well, with Team Yellow in defensive. Regaining possession of the puck, carrying the puck all the way towards the left wing. Team Yellow, that is the wing, looking to pass to the center. We can see them action in front of the net, but this time counter offensive. Team White
in that left wing, looking to pass in the center, and another opportunity. Great block by the goalkeeper to his left. That was a wrist march, snapshot or a wrist shot. There wasn't much backswing. It could well have been 2-0 for Team White, and there is a counter by Team Yellow now. And this time off target, Team Yellow. ऐसा नहीं है कि टीम येलो जो पिछड़ रही है उसके पास मौके नहीं मिले हैं, मौके मिले हैं लेकिन उन्हें वो कन्वर्ट नहीं कर पाई है। यहाँ पे अगर आपको अपने साथी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गोल पोस्ट को अगर हम देखें तो गोलकीपर के कंधों के बराबर है। अगर 1-1 होगा तो बहुत मुश्किल में गोल होता है, इसीलिए डिफ्लेक्शन का सहारा यहाँ पर हमेशा लेना पड़ता है। जो आपके मूव्स होते हैं, कब आपका कौन सा खिलाड़ी कौन सी जगह पर खड़ा होगा, उसके लिए आप बहुत घंटों प्रैक्टिस करते हैं। येलो क्या 2-on-1 है, क्या कोई गोल, लेकिन अच्छा पास दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से गोलकीपिंग की है। 4 नंबर के गोलकीपर ने अभी तक जितना भी खेल हुआ है उसमें वो येलो की टीम के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहे हैं। कई उन्होंने टीम येलो के ऑफेंसेस को न्यूट्रलाइज किया है। क्या सब्स्टिट्यूशन एक नया लक लेकर आएगा टीम व्हाइट अपने साथी की तलाश करते हुए, लेकिन फिर से पोजीशन हासिल कर लिया है येलो ने। येलो के पास पोजीशन बहुत है अपने साथी की तलाश की, कहीं से कोई आए, लेकिन व्हाइट ने भी अच्छा डिफेंस है, बहुत ही अच्छा पास, मौका है एक एंगल का, और फिर से बहुत ही शानदार गोलकीपिंग। अपने लेफ्ट को वो झुके और जो एक छोटा सा एंगल तलाश रहे थे उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो पहला पीरियड समाप्त, 1-0 से टीम व्हाइट इस समय बढ़त पर है। कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो फिलहाल तो एक जो ऑफेंस मिला था मौका वो टीम व्हाइट ने कन्वर्ट किया, और टीम येलो बहुत अच्छे मौके बनाने में कामयाब रही है, लेकिन किसी तरीके से वो मौकों को कन्वर्ट नहीं कर पाई है। देखिए मौका जरूर था, 1-on-1 थे, गोलकीपर के साथी भी वहीं खड़े थे, अच्छा फ्लिक किया, लेकिन ऑन द लेफ्ट पैड ऑफ गोलकीपर पक जाके टकराई। थोड़ा शायद अगर लेफ्ट शोल्डर की तरफ एम करते तो कन्वर्जन के चांसेस थोड़े बढ़ सकते थे। तो प्रदर्शनी मुकाबला लद्दाख के खिलाड़ियों का, 2 टीम यूटी येलो एंड यूटी व्हाइट आपने देखा। We can see the referees and the linesmen all congratulating the players for a wonderful exhibition match of ice hockey. Have a look at the replay there. This is where the offensive line were looking to make room for that slap shot. Tremendous backswing and found its way into the net. They took a lead of 1-0, 3 minutes into play. And this is where the defense of Yellow clearly missed out. They were not covering the shot maker. And this is where Team Yellow tried. All credit to the goalkeeper of Team White as well, Mahavir. Tremendous saves that he carried out by not allowing the puck to enter the goal line of the mesh net area. जी बिल्कुल, एक दीवार की तरह टीम वाइट के लिए खड़े रहे, अलग अलग तरीके से कोशिश किया। यहाँ पे भी हमने देखा कि पीछे से आके एंगल बनाने के लिए दिया और अपने साथी को यहाँ से वो पास करेंगे बिल्कुल। और अब यहाँ से मौका था, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच, इतना आसान नहीं होता इतने भारी और बड़े ग्लव्स के साथ, लेकिन ही वाज 10 on 10 अगर हम मार्क्स की बात करें टीम वाइट के गोलकीपर। और क्या बेहतरीन कैमरा एंगल्स हैं, न केवल आप खेल देख रहे हैं बस इस स्लो मोशन में जो ऑडियंस बैठी है आप उस पर भी नज़र रखिए, कितनी चाक चौबंद नज़रें, कितना इंटरेस्ट है उनको आइस हॉकी में। और आज लेफ्टिनेंट जनरल बीडी मिश्रा जी ने ऑफिशियली इसे लद्दाख का स्पोर्ट अनाउंस कर दिया है। और इसी के साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी की भी समाप्ति हुई।